everyone. Hi. Hi Shalini, Kanika, Hi, Smita. Shweta ji. This song reminded me of my school. Hello. Yes. This song reminded me of my school. Oh, acha. It was played in our school every day. Oh, nice. So, So, anyone would like to share anything? तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें? Basically, I am very happy nowadays. Why I don't know. अरे वाह. So magic has started happening in your life, huh? Yes. Great. That's lovely. आपका चेहरा चमक रहा है. Your face is. I am happy. Yes, that's I know. I don't know. Wow, that's so nice. And आप लोगों ने अपने वो विश लिस्ट बना लिए ना पूरे? वो रोज सुबह देखते हैं ना? और कल वो चेक बनाया कि नहीं सबने? हाँ, चेक का प्रिंट आउट निकल के कल आएगा. हाँ, तो कल वो चेक भी बनाएगा तो और हैप्पी फील करेंगे. देखिएगा वो चेक देख के और हैप्पी फील करेगा. So yes, Ashvika, so let us begin today's session. Okay, so today is day 18 and we have the magical to-do list today. Who will read today's chapter? I can read. If the Yashaswini wants to read, then she can read. She is not there and Just she came. So I'll read then. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. By Eden Phillpotts, novelist and poet. so the world is full of magic. इस दुनिया में मैजिक थिंग्स का कमी नहीं है, बस हमें वो मैजिक थिंग्स को मांगना होगा. हमें अपना बिट्स को मतलब हमें ध्यान से देखना होगा हमें क्या चाहिए डिटेल में और हमें वो मैजिकल थिंग्स को मांगना होगा अपने लाइफ में. कोई भी किसी भी चीज का कमी नहीं है इस वर्ल्ड में. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. So अभी तक तो gratitude सबका best friend बन गया होगा. Whenever you need anything, gratitude is always there for you. Anytime you can use. आधी रात को भी आप gratitude करना चाहो तो you can do it. So it's like a 24/7 best friend for everyone. And it is always there for you and it is always there to help you. कभी भी आप gratitude करोगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि नहीं आज gratitude मत करो, आज बहुत लोगों ने किया. You can do it number of times and कभी भी आप कर सकते हो. इसका जो मैजिकल प्रैक्टिस है ना वो आपको और भी दिखाएगा कि और कितने वेज है जिसपे आप ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड हो सकते हो, जिसपे आप ग्रैटिट्यूड पे लीन हो सकते हो एंड और कितने मैजिकल चीज आप अपने लिए कर सकते हो. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed even if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do and you're at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them.
Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. ओके सो एवरीडे हमारे लाइफ में, सबकी लाइफ में छोटे माइन्यूट प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं, कभी कुछ एंड एवरीथिंग नीड्स सॉल्विंग। जितना भी छोटा प्रॉब्लम हो सबको हमें सॉल्व तो करना ही पड़ता है। तो समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि वी फील ओवरवेल्म, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है कि हाँ लाइक वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व अ सिचुएशन, हमें बहुत ओवरवेल्म लगता है। मतलब यू नो मतलब इतना हम थक जाते हैं डेली के माइन्यूट प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कि एक टाइम हमें मन ही नहीं करते कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वो आपका मे बी आपको लगता है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो यू नो डोंट हैव इनफ टाइम फॉर थिंग्स, यू उस प्रॉब्लम की वजह से मे बी आपको लगता है कि आपके पास बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है, आप लॉस अपने 24 आवर्स जो आपको मिलते हैं एक दिन में, आप उस प्रॉब्लम की वजह से बाकी चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप लॉस पे हो। तो आप वर्क के वजह से ओवरवेल्म फील कर सकते हो, क्योंकि आपको मे बी आपके वर्क का बहुत प्रेशर है और आपको टाइम नहीं मिलता है। आप एक होम मेकर हो एंड आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, तो कभी कभी हम उससे भी थक जाते हैं। बट you don't have the means to get support to give you time out। तो ऐसा कोई नहीं है, अगर आप होम मेकर हो तो आपको बच्चों का ध्यान रखना ही होगा पूरा दिन। देयर इज नो वे कि हाँ आप छोड़ दो कि आज तो नहीं मन है ध्यान रखने का तो आज नहीं रखते। बट आप वो प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, आप एक दूसरे यू कैन लुक इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड यू कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। बट उसके लिए आपको एक आइडिया आना चाहिए। यू मस्ट हैव लॉस्ट समथिंग एंड ट्राइड योर बेस्ट टू लोकेट इट बट एट नो लक। सपोज कोई सामान आपका खो गया और आप उसे ढूंढ रहे हो बट स्टिल कोई लक नहीं है, मिला नहीं आपको वो सामान अभी तक, या फिर यू वांट टू फाइंड समथिंग, जैसे आपको एक पेट चाहिए है या फिर अपने बच्चे के लिए मे बी कोई डॉक्टर चाहिए, मे बी यू वांट अ बेबी सिटर फॉर योर किड, आपको किसी पार्टी में जाना है उसके लिए यू नीड अ ग्रेट हेयर ड्रेसर, कुछ भी आपको चाहिए और आपको अभी तक वो नहीं मिल पाया है, तो आप बहुत एक इरिटेटेड और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हो जब आपको बहुत दिनों से कुछ चाहिए होता है और आप ढूंढते भी हो बट स्टिल आपको वो मिलता नहीं है। तो यू कुड बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ समथिंग अ पर्सन हैज आस्क्ड यू टू डू एंड यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर एक इंसान आपसे कुछ बोले कि आप आज ये कर दो पर आपको मन नहीं है वो करने का या आपको वो चीज नहीं आता है, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है। जैसे आपको खाना बनाना उतना अच्छे से नहीं आता है पर आपके घर में गेस्ट आ रहे तो सब बोल रहे कि आप ही खाना बनाओ, तो आप मना भी नहीं कर सकते और आपको आता भी नहीं है बनाना, तो आप क्या करोगे? या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया किसी के साथ और उसको रिजॉल्व करने के जगह वो और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो ये सब केसेस में व्हेन द सिचुएशन बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रैटिट्यूड का कैसे हेल्प ले सकते हैं ये सब सिचुएशन में? This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Okay, तो ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट का प्रैक्टिस है, द चैप्टर विच वी आर डूइंग टुडे, ये आपका हेल्प करेगा टू सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स। अभी तक तो हम अपने बड़े बड़े ड्रीम्स, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी ये सब पे ध्यान दे रहे थे ना, पर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं डेली हमारे लाइफ में वो कैसे सॉल्व होंगे? वो मैजिकल टू डू लिस्ट के प्रैक्टिस से हमारा डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब आपको समझ नहीं आते कि आप क्या करो, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन हम फिर भी निकाल लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से ढूंढ के, बट जो डेली के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं हम एक छोटे छोटे चीज लिए तो बैठ के सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो व्हाट कैन यू डू इफ यू वांट टू सॉल्व योर स्मॉल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? और आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे ये छोटे छोटे चीज इतने आसानी से सॉल्व कर सकते हो। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as it was done, and then let the magic happen. तो जब हम ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर और लॉ ऑफ
ऑफ अट्रैक्शन को कंबाइन करते हैं, जो पीपल का सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो इवेंट्स, ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर क्या करता है, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में उसको रीअरेंज कर देते हैं, और ये आप ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर आपके लिए करते हैं। आपको ये जानने का जरूरत है कि उसने कैसे किया, या मतलब आपका जॉब कैसे हो गया। आपका जॉब क्या है, टू बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द थिंग दैट यू वांट राइट नाउ। अगर आपके पास, अगर सपोज आज गेस्ट आ रहे हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो आपको ग्रेटफुल होना है इस चीज के लिए कि हाँ गेस्ट आ चुके हैं, उन्हें अच्छा खाना मिल चुका है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपके फिर वो ग्रैटिट्यूड कैसे करेगा, किसको भेजेगा या क्या चीज होगा, आपको बस उस सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है, और ऐसे ग्रेटफुल होना है कि वो सिचुएशन हो चुकी है। सपोज वो खाना बनाने वाला सिचुएशन को हम लेते हैं एक बार, तो आपको उस पॉइंट पे ये इमेजिन करना होगा कि गेस्ट आ चुके हैं, उनको खाना आप सर्व कर चुके हो अच्छा, और उनको बहुत अच्छा लगा है, और आपको इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना होगा। उसके बाद वो ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर का काम है कि वो कैसे वो चीज करवाएगा अपने लाइफ में। एंड आफ्टर बीइंग ग्रेटफुल आपका काम बस यही है टू सिट बैक एंड सी द मैजिक हैपन इन योर लाइफ। तो आपका ये मैजिक करने का जॉब नहीं है, आपका सिंपली जॉब है कि आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करो फॉर द थिंग दैट यू वांट डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't have to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. तो आज का हमारा क्या प्रैक्टिस है, आज आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू वुड लाइक टू बी डन और रिजॉल्व फॉर यू। तो जो भी चीज आप चाहते हो, आपको जो भी आपको रिजॉल्व चाहिए अपने लाइफ में, जिसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको उसका एक टू डू लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट का हेडिंग आपको देना है द मैजिकल टू डू लिस्ट। उसमें यू माइट पुट थिंग्स दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर। सपोज आपके पास कोई चीज करने का टाइम नहीं है, आप उसको भी लिख सकते हो उसमें। तो ग्रैटिट्यूड ऐसा किसी इंसान को भेज देगा या कुछ ना कुछ कर देगा जिससे वो आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। या फिर आपका कोई लाइफ में करंट प्रॉब्लम्स है छोटे छोटे, आप वो भी लिख सकते हो। डे टू डे थिंग्स जो आपको है, जो मतलब होता है ना, वो भी लिख सकते हो। या फिर लाइफ प्रॉब्लम है, बिगर सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो टू डू लिस्ट में। तो आपको हर एक एरिया ऑफ लाइफ में थिंक करना है, और आपको बस सोचना है कि मेरे को क्या चाहिए। दिस इज प्रीटी सिंपल आई थिंक बाय नाउ। अब तक हमने एक एक एरिया अलग से भी कर लिया है, सो आई थिंक एवरीबडी नोज कि उन्हें क्या क्या चाहिए हर एक एरिया में। सो दिस प्रैक्टिस विल बी प्रीटी इजी फॉर यू। तो आपको बस उन एरिया के चीज जहाँ पे सोल्यूशन चाहिए आपको वो लिखना है, एंड यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि वो चीज ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में। When you've finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. तो जब आप लिस्ट बना लोगे अपनी चीजें का, इस लिस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितना चीज डालना है। यू कैन पुट एज मेनी प्रॉब्लम्स, एज मेनी थिंग्स एज यू वांट, पर एक दिन में आपको उस लिस्ट में से एनी 3 थिंग्स चूज करना है विच यू फील कि वो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्व होने के लिए। और उस ईच आइटम पे आपको फोकस करना है। सपोज आपने वो 3 चीजें आज पिक किया, ठीक है, और वो कल तक हो गया, तो कल आप और करना। अगर वो नहीं हुआ है तो फिर कल आप वापस उन्हीं 3 चीजों पे वर्क करना, और यू नो विद इन सम टाइम वो चीज आपके लिए मैजिकली डन हो जाएगा। तो आपको बस वो पीपल, सर्कमस्टेंस और इवेंट इमेजिन करना है, ताकि जो ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर है वो आपकी तरफ उनको भेज पाए एंड वो आपका काम कर पाए।
all done, all sorted, all solved for you. You are giving massive thanks in return for having it been done. तो आपको पहले तो इमेजिन करके थैंक्स देना ही है कि हाँ मेरा ये काम हो गया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. पर एक्चुअली रियल लाइफ में भी जब आपका वो काम हो जाएगा ना, तब आपको और भी ज्यादा यू हैव टू गिव मैसिव थैंक्स. मतलब बहुत बड़ा थैंक्स देना है आपको यूनिवर्स को, उसका मैजिकल पावर को, सबको. और जो 3 चीज आप चूज करोगे उस पे आपको एटलीस्ट हर एक चीज पे आपको 1 मिनट स्पेंड करना है ऑन ईच आइटम. और क्या करोगे आप उस 1 मिनट में? यू हैव टू बिलीव कि वो ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है या फिर जो आपका काम है वो ऑलरेडी डन हो चुका है, एंड इन रिटर्न आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो आप. तो आप ये प्रैक्टिस डेली फॉलो कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपके लिस्ट में कितने चीज है. बट देयर इज पावर इन सिंपली पुटिंग थिंग्स यू वांट डन ऑन द मैजिक टू डू लिस्ट. तो आप इसमें कितने भी चीजें डाल सकते हो एज यू वांट, पर एक दिन में 3 ही चीज को चूज करना विच यू फील आर रियली इंपॉर्टेंट, और वो काम आपका मैजिकल टू डू लिस्ट कर देगा. यू जस्ट नीड टू बी रियली ग्रेटफुल एंड आपको इमेजिन करना है कि वो काम आपका हो गया. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. If you have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. So you have to remember law of attraction कैसे बोलता है. This is reminded in almost every chapter कि law of attraction says like attracts like. तो इसका मतलब जब आप ग्रेटफुल हो रहे हो उस सोल्यूशन के लिए जो आपका हो चुका है, जो काम आपका हो चुका है, जो यूनिवर्स ने आपका काम कर दिया है, तो आप और सिचुएशंस के लिए आप पॉजिटिव चीजें, आप और सोल्यूशन अपने बाकी के प्रॉब्लम्स के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो. तो फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट्स मोर प्रॉब्लम. आप जितना प्रॉब्लम पे फोकस करोगे उतना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा. आपको पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, अब आपको उसका सोल्यूशन ढूंढने पे काम करना है. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम. पर ज्यादा फोकस नहीं करना है. एक बार हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वी नीड टू फोकस कि हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं उस प्रॉब्लम का. एंड आपको उस सोल्यूशन का मैग्नेट बनना है, नॉट मैग्नेट टू द प्रॉब्लम. आपको यूनिवर्स को ऐसा कमांड देना है कि वो आपकी लाइफ में सोल्यूशन भेजे. चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए वो और ज्यादा सोल्यूशन भेजता रहे, ना कि आपको उसको ये दिखाना है कि आई नीड मोर प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ. यू नीड टू बी द मैग्नेट टू सोल्यूशन एंड नॉट द मैग्नेट टू द प्रॉब्लम. एंड बीइंग ग्रेटफुल दैट यू हैव द सोल्यूशन इज इट हैज बीन रिजॉल्व्ड अट्रैक्ट्स द सोल्यूशन. अगर आप एक सोल्यूशन उन 3 चीजों में से भी सपोज आपका एक काम यूनिवर्स कर देते हैं मैजिकली एंड यू आर गिविंग वेरी मच थैंक्स टू दैट सोल्यूशन कि हाँ यूनिवर्स हैज गिवन यू दैट सोल्यूशन, तो यूनिवर्स इन रिटर्न आपको बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी और सोल्यूशन देगा. बिकॉज यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट सोल्यूशन, सो यू विल अट्रैक्ट इवन मोर सोल्यूशंस टू द रेस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. Demonstrate how. इस चीज को अच्छे से समझने के लिए वी हैव अ स्टोरी इन दिस बुक जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा हाउ डज दिस रियली वर्क. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents,
and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with the man's Christian name written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet. Yeah. So इसमें तो like बहुत ही ज़्यादा magic हो गया. The daughter, she had lost her wallet. There were her debit cards or credit cards, and there was a list of unlisted numbers. And she had been overseas. मतलब अपने घर पे भी नहीं. And she didn't have a publicly listed phone number. उसका जो number था, that was not publicly listed. It did not have a common surname also. But इतना obstacles होने के बारे में, इतना difficulties होने के बाद भी, the daughter, she sat down and she closed her eyes and she imagined that the wallet is in her hands and all the precious things that was there in the wallet, everything was intact there and nothing had been lost. And you know, we saw that how the farmer, he magically, he called so many numbers, but still when he called the customer service, he found how he found that the number was listed, how he found the daughter, even we don't know, because afterwards the father and the daughter also tried up calling her, but that time it was showing that the number is not listed. But still, this is the thing, how magic happens. We don't know how it happens, but it eventually happens, and it happens for the good. So you have to use this power of magic, and you have to create miracles in your life. अगर आपको एक positive and better life चाहिए so from 100 miles away, not even from like behind her house or somewhere near her house, 100 miles दूर से a farmer, not even the farmer could have taken all her stuff, but not even a rich man and a responsible man returned it. The farmer who was, farmers are not generally that rich, so the farmer still, the wallet went in hands of someone who could be trusted, जिसको भरोसा किया जाता था. क्या पता वो wallet किसी चोर के हाथ में चला जाता, तब तो उसको मिलता ही नहीं. She should be at least glad कि किसी ऐसे इंसान के पास गया who tried. मतलब इतना numbers में phone करने के बाद भी still he was trying कि उसको owner का पता चल जाए and he can return that wallet to her. Right. So these are the things that happen magically with us. And you saw how the girl, मतलब जब भी वो wallet के बारे में सोचती थी, वो कभी भी कोई negative नहीं सोचती थी कि हाँ मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, मेरा जो personal सामान है वो चोरी हो जाएगा, जो मेरा cards है वो चोरी हो जाएगा. What she always did, she always imagined कि वो wallet उसके हाथ में है and वो उस wallet के लिए बहुत ज़्यादा grateful हो रही थी. So जब वो daughter, she did her part of being grateful, the wallet automatically came to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been.
You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो मैजिकल पावर किसी के लिए बाउंड नहीं है कि हाँ हम बच्चों के लिए है या हम बड़ों के लिए है, हम रिच के लिए है या हम पुअर के लिए है. एनीबडी एंड एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन यूज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. ये सबके लिए अवेलेबल होता है, बस हमें आना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है, हमें उसे समझना है, डिस्कवर करना है एंड हमें बस समझना है कि हम कैसे उसे यूज कर सकते. वी नीड टू नो द राइट वे. जैसे अगर हम वो काउंट योर ब्लेसिंग्स का एग्जांपल है, अगर हम सिर्फ वो चीजें लिखेंगे कि भाई मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर थैंकफुल फॉर, तो उतना रिजल्ट नहीं दिखेगा. बट देयर इज अ प्रोसेस. हमें वो चीज भी लिखना है, उसके साथ हमें उसका रीजन भी लिखना है कि हम क्यों उस चीज के लिए ग्रेटफुल है. सो देयर इज अ प्रोसेस एंड देयर इज अ वे टू डू एवरीथिंग. तो हमें बस इस बुक के थ्रू उस थिंग को डिस्कवर करना है सो दैट वी कैन डू इट इन द राइट वे and attract as much magical power as we can in our lives. Magic practice number 18. The magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Step 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list The Magical To-Do List. Step 3. Choose 3 of the most important things from your list. And one at a time, imagine that each thing has been done for you. Step 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Step 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So वापस से we need to continue writing the count your blessings practice. उसके लिए हमें 10 blessings लिखना है and we have to write the reason why we are grateful for it. और हर एक blessing के नीचे thank you, thank you, thank you लिखना है. और complete होने के बाद हमें वो list को वापस से रीड करना है. फिर आज का क्या प्रैक्टिस है, हमें अपना एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनाना है जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स हमें चाहिए कि वो सॉल्व हो जाए, या कोई भी काम ऐसा है जो आप चाहते हो वो हो जाए पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो वो सारी चीजें हमें मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखनी है. और एवरी डे हमें कोई भी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको फील होता है अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है उस लिस्ट में से आपको वो 3 चीजें चूज करनी है एंड एक एक करके आपको इमेजिन करना है कि वो चीज आपके लिए हो गया है. और हर एक चीज पे आपको 1 मिनट का टाइम स्पेंड करना है बिलीविंग कि वो चीज हो चुका है, और इन रिटर्न आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है उस चीज के लिए. और आज रात में सोने से पहले यू नीड टू ग्रैब द मैजिक रॉक इन योर हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू for the best thing that happened to you during the day. Yeah, so any questions for today? Yeah, hi Ashika. I wanted to ask, so this is for the day ना, मतलब आप जब सुबह स्टार्ट करो तो आपको दिन में कौन से 3 ऐसे टास्क या कोई काम आपको करने? नो दिस इज नॉट दैट थिंग. आप कभी भी आज बैठो, ठीक है, और एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर डेली का कुछ है या फिर कभी कोई बड़ा भी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है पर आप चाहते हो वो काम हो जाए, तो आप कुछ भी कितने भी चीजें ऐड कर सकते हो उसमें. पर एवरी डे आपको 3 चीज के ऊपर वर्क करना है. आप सारी चीजों पे एक साथ वर्क नहीं कर सकते हो. यू हैव टू चूज एनी मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दैट लिस्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम. आपको हर एक चीज पे एक मिनट फोकस करना है ऑन द 3 थिंग्स. सो दैट मेक्स दिस प्रैक्टिस फॉर 3 मिनट. और आपको इमेजिन करना है एक एक करके कि वो काम आपका हो गया है एंड इन रिटर्न यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट थिंग. ओके. विश लिस्ट में हम लोग किसी और के लिए भी रख सकते हैं. टू डू लिस्ट है ये सिर्फ आज ही करना है कि आगे भी करते रहना है? आगे भी, जैसे मतलब आपका उस प्रॉब्लम वो जो टू डू लिस्ट आपने बनाया उसमें से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आप एक दूसरा टू डू लिस्ट बना दो इफ यू हैव समथिंग टू ऐड. सो यू कैन कीप एडिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट. ये विश लिस्ट हम लोग विश करते हैं उसमें हम लोग किसी और के लिए विश कर सकते हैं क्या? हाँ, या ऑब्वियसली यू कैन डू इट.
रेनू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही थी सब विश लिस्ट को पॉजिटिव वे में लिखना है ना एकदम। जैसे उन्होंने वॉलेट के लिए कि वॉलेट, जैसे मेरी कोई चीज खो गई तो मैं उसमें ये नहीं लिखूंगी कि ये मेरी चीज खो गई, मैं लिखूंगी मेरी ये चीज मिल गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस एकदम एकदम। और उसको और यूज ऐसा कर करना रहे हो, है कैसे यूज कर रहे हैं। ये भी नहीं कि ऐसा हो जाए, ये नहीं लिखना है, लिखना है कि हो गया। और ऐसा मान लीजिए फील आपको करना है। कुछ चीज, अच्छा ऐसे नहीं लिखना कि हो जाए, लिखेंगे हो गया। हाँ हो चुका, आप ऐसा किए कि हो चुका और उसके लिए आप थैंक यू कर रहे हैं। जैसे जैसे उसने इमेजिन किया कि उसके हाथ में वॉलेट है, उसके अंदर का वो सारा सामान देख रही है, कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स है, पैसे हैं, सब चीज है, फिर वो फोल्ड करके रख रही है। इट्स लाइक दिस। हाँ एकदम। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज हम लोग का सेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। आज छोटा सा चैप्टर था ये, तो अगर किसी की कोई शेयरिंग हो, कोई कुछ शेयर करना चाहता है। Anupriya, I can see you for the first time. Anupriya, have you been there with us earlier also? आशिका, मैंने वो चेक डाला है फिलअप करके, ठीक है क्या? देखना उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। एक सेकेंड। Navya, are you doing all your activities every day? Navya Siksaria? Yes, auntie. Are you enjoying? Yes, auntie. Can you see magic happening? हाँ आंटी ठीक है। Huh? What magic could you see happen? आंटी बहुत ग्रेटफुल फील होता है सब चीज के लिए। अच्छा, ग्रेटफुल फील करके क्या होता है? आंटी हैप्पीनेस मिलता है। So you're happy, that means. Yes. So that's the best state to be. अगर आप खुश हो ना बेटा, तो वो सबसे बढ़िया चीज है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जैसे ब्रिजलता आंटी ने भी आज बोला कि मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, तो यू नो दिस इज द बेस्ट फीलिंग टू बी। अगर आप हमेशा खुश रह सकते हो, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ऐसी ग्रेटफुल रहिए, ऐसी खुश रहिए। सो देखिएगा लाइफ अपने आप मैजिकल हो जाएगी। सोचने का तरीका ही बदल जाता है इस बुक को पढ़ने के बाद। सोचने का थोड़ा तरीका ही चेंज हो जाता है एकदम। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 18 चैप्टर की, अभी 10 चैप्टर और बाकी है। जब आप ये 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब आप देखेंगे कि यू विल बी चेंज्ड पर्सन। नहीं, जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना वो इजी हो गई, मतलब जो डेली लाइफ इजी हो गई आपको। अब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, ठीक है ना, हो जाएगा। एटीट्यूड ही बदली होगी, एटीट्यूड बदल गया। The attitude is everything। बोलते हैं अगर एटीट्यूड बदल जाए ना तो आदमी की किस्मत बदल जाती है, क्योंकि अपने लोगों का नजरिया ही देखने का सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि दुनिया बदलेगी, दुनिया अपने अराउंड सब एज इट इज चल रहा है, पहले भी ऐसे चल रहा था, अभी भी ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं है कि दुख कम हो गया है, सुख बेसी हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग का देखने का जो नजरिया ना, बोलते हैं हम लोग खुद चश्मे पहनते हैं, तो आप जिस चश्मे से दुनिया को देखोगे दुनिया आपको वैसी लगेगी। अगर आप काला चश्मा लगाओगे तो आपको काली नजर आएगी, अगर आप रंगीन चश्मा पहनोगे तो आपको रंगीन नजर आएगी। तो बस ये पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग अपना चश्मा बदलना सीख जाते हैं। कौन सा चश्मा हमें लगाना चाहिए हम बस ये समझ जाते हैं, और सिर्फ वो थोड़ा सा चेंज से ही आप देखेंगे पूरी दुनिया कितनी अलग लगने लगती है। इमेजिनरी सपने भी इंसान देखने लगता है, नहीं ऐसा तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पहले सोचता था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, अब सोचता हाँ ये तो हो सकता है। अरे मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने सोचे और नहीं हो सकता। इस दुनिया में आप देखेंगे हर एक इंसान के अराउंड जो भी क्रिएट हो रखा है ना, हर एक इंसान के अराउंड उसका अपना एक ब्रह्मांड है। हम लोग ही अपने ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, हम लोग ही उसको चलाते हैं और हम लोग ही डिस्ट्रॉयर हैं। फर्क ये कि हम लोग अपनी खुद की सत्ता को, अपनी ताकत को पहचानते नहीं। अगर आप ये समझें कि अगर हम लोग जाने कि हम लोग एक्चुअल में है कौन,
हम लोग तो जो ईश्वर है उन्हीं की संतान है ना। तो आप ये जानते हैं कि आज जैसे माता पिता होंगे, बच्चों में भी तो वैसे ही जीन्स आते हैं, वैसे ही संस्कार आते हैं, वैसे ही वो भी होते हैं। तो आप ये समझिए, जब हम लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि ईश्वर परम शक्तिशाली है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, सुई से लेकर जहाज से, उनके लिए सब बराबर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, जब हम लोग उनकी संतान हैं, तो जो ईश्वर सारे गुण हैं, अपने में भी वो सारे गुण हैं। फर्क क्या हो गया, हम लोग ये डिस्कनेक्ट हो गए। हम लोग भूल ही गए कि अरे हमारे तो वो पिता है, हम उनके बच्चे हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगर एक शक्तिशाली माता पिता के जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि उनमें एक अपनी एक शक्ति रहती है, क्योंकि वो जानते हैं ना, अरे जानते हो मेरा बाप कौन है, एक वो फीलिंग रहती है कि नहीं। हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोग ये भूल ही गए हैं कि अरे हम लोग किसके संतान हैं। हम लोग इस दुनिया में आके जो बोलते हैं ना कि नाम की दुनिया में, माया में फंस गए, पर ये भूल गए कि एक्चुअल में हम लोग कहाँ से आए। एक्चुअल में तो हम लोग उनकी संतान है। तो उनमें जो पावर है, जो ताकत है, जो उनकी सत्ता है, जो उनके गुण है, वो सब हम में है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों में कमी है। फर्क ये है कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम लोग एक भूल भुलैया में जैसे नहीं होते, एक मेज में अपने घुसते हैं, तो हम लोग को सब जगह अपनी परछाई दिख रही है, तो हम लोग ये भूल जाते कि असल में मैं कौन हूँ। यहाँ पर भी क्या हो गया ना, इतने सालों से हम लोग जन्म मरण के चक्कर में पढ़कर हम लोग सिर्फ ये नाम रूप में ही रह गए कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो एक्चुअल में हम लोग कौन है, हम लोग भूल गए। हम लोग को ये याद रहता कि इस जीवन में मैं स्मिता हूँ, इसके पहले तो मैं कुछ और थी, उसके पहले तो मैं कुछ और थी, पर एक्चुअल में मैं कौन हूँ। अगर ये हम लोग पहचान जाएंगे और अगर हम लोग अपने आप को जान जाएंगे, तब हम लोग रियलाइज करें कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग सोचे और वो नहीं हो सकता है। और ये फैक्ट है कि दुनिया में जितनी भी सुई से लेकर हवाई जहाज से लेकर आप रॉकेट है, जो भी चीज आप इमेजिन कर सकते हैं, हर चीज सिर्फ इंसान की सोच से ही उपजी है। किसी ने पहले उसके बारे में सोचा, बहुत सोचा, फिर उसके बारे में पता किया, रिसर्च किया, फिर उसको बनाया, पहले पेपर में बनाया, फिर उसको बड़े रूप में बनाया, फिर जाके वो हकीकत में आई है। तो ऐसे ही हम लोग भी जो भी सोचते हैं, आप मतलब बोलते हैं वॉट एवर थॉट, अगर जो भी आप थॉट डालते हो ना यूनिवर्स में, वो कहीं ना कहीं क्रिएट होने लगती है। जो भी थॉट वर्ल्ड में जितनी भी क्रिएशन है ना, वो सिर्फ थॉट से। तो ये अगर आप कोई चीज सोचते हो कि अरे मेरे को ये चीज करना है, और अगर आप आधे में अगर उसको छोड़ देते हो ना, आप ये मत सोचिए कि अगर आप नहीं किए तो कोई और नहीं करेगा। अगर आपने एक थॉट का बीज डाल दिया है, तो वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो पैदा होएगी। जो भी चीज का हम लोग थॉट डाल देते हैं, दैट इज लाइक अ सीड। जैसे पेड़ की बीज हैं, वो अगर एक बार अंकुरित हो गए हैं, कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे तो पेड़ तो उगे गए। वैसे ही हमारे थॉट्स हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम लोग अच्छे थॉट्स करेंगे तो दुनिया अच्छी बनेगी, अगर हम लोग बुरा सोचेंगे तो दुनिया बुरी बनेगी। हम लोग के आसपास जो भी सब कुछ हो रहा है ना, देखा जाए कोई और करने वाला नहीं, हम लोग खुद ही है इसके रचयिता। आज अगर आप कोरोना बोल ले या जो भी बोल ले, सब हमारे ही कर्म है, हमारी ही सोच है। हम लोग सोचते हैं कि अरे दुनिया बहुत बुरी है, तो दुनिया बुरी होगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना। अपने सोचते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग देखा जाए तो हमारी ताकत असीम है, असीम है। बस हमें वो ताकत अपनी पहचाननी है। और कोई कुछ शेयर करना चाहे? यशस्विनी, यू ज्वाइन लेट टुडे, आई नो, बिकॉज आपका ज्वाइन नहीं हो पाया। आज का जो टास्क है वो अश्विका दी एक बार फिर समझा देगी, बिकॉज टुडे वी हैव टाइम। Ashvika, can you just repeat today's task for her, please? For a small recap of the chapter, if possible. Because ये बच्ची रोज ज्वाइन करती है और इसका 2 बार आज मेरे पास फोन आ गया कि मासी मेरा आज लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया है, इसलिए मैं लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? But somehow she managed even in spite of that. So that's really so nice. Yeah, so today we need to make a list of any problems that we are having and the solutions that we need for that problem. And yeah, you need any work to be done and you can't do it, like you don't have the time for that work. So you need to list down all that things, and heading mein you need to write as the magical to-do list.
ठीक है, and every day you need to take up, you can list as many things as you want, but every day you need to take up any 3 things from that list and you need to visualize that your problem has been solved, आपको solution मिल गया है, and you have to be thankful for that solution and for the problem that has been solved or the work that has been done by the universe. All right, and as you and as the problem keeps on solving, you can take up more things from that list, and you can even add things to that list if you want. Like, I'll give you an example we read in the magic book. Suppose there was a girl whose wallet got lost. So it had all her debit cards, her cash, her important information. But she did not worry about her wallet being lost. She used to be thankful that her wallet is there in her hands and all the debit cards and every important documents are there in that wallet. So what happened? A farmer got that wallet and, you know, he somehow contacted her and returned her the wallet by that night. Okay. Any question you have regarding this practice? No. Okay. So if anyone has any Okay, questions, bye. sir, otherwise shall we close the session for today? Yeah. Yes. So Ashvika, would you like to play some music at the end? Yeah, sure. Just a second. श्वेता जी, बोलो बोलो बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, आ रही है। बोलिए। जो शुरू के चैप्टर मेरे मिस हो गए, आपने वो यूट्यूब का लिंक डाला है क्या? यूट्यूब में डाले हैं वो चैप्टर? नहीं, अभी यूट्यूब पे हमारा है, मैं वो यूट्यूब का लिंक शेयर कर देती हूँ। मैंने ग्रुप में नहीं शेयर किया है, वो मैं आज रात तक शेयर कर दूंगी। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, ये अपने लोग का ये सेशन फिर से कोई स्टार्ट होगा क्या? दिल्ली में एक जन करना चाहते हैं। ये सेशन जैसे ही खत्म होगा, हम लोग एक हाँ। हिंदी में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट सेशन हम लोग पूरी हिंदी में पढ़ेंगे, वो अपने हाँ। 1 जुलाई से शुरू हो रही है। तो आप लोग के कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो आप उनको जरूर बोलिएगा। तो हम लोग 1 जुलाई से शुरू कर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदी में तो करेंगे ही। अच्छा, नहीं वो उनको तो इंग्लिश भी चलेगा। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, तो उनको मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करवाने के लिए। जरूर दिल्ली से एकदम। You tell me the details so that I will tell him. Yeah, I'll share the details. Yeah. स्टार्टिंग के सेशन रेनू उसमें भी कर सकती हो जब 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। हाँ जी, रेनू स्टार्टिंग के सेशन उसमें भी कर सकती है ना जब 1 जुलाई से स्टार्ट। हाँ एकदम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जब भी होगा आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं वापस। हाँ। से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी
So friends, so let us meet again tomorrow. Yes. Till then, Thank you. enjoy yourselves, write your magical check, make your magical to-do list, and be magical. Okay? Love you all. Love you. Bye. Bye.